Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, in this lesson let us introduce a new topic, very interesting topic, surds. So what is surds? An expression which has at least one term involving a radical sign. ऐसी वो तमाम टर्म्स जिसमें एक आपके पास रेडिकल साइन मौजूद हो, उसमें इन्वॉल्व हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी स्टेटमेंट जो है वो सर्ड कहलाती है. सो हेयर आर द 4 पॉइंट्स फॉर यू एंड यू हैव टू राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स इन योर कॉपी at the beginning of our today exercise of the lesson 2.8. So this is an expression in which the radical sign is involved in the denominator. So we have a process in which we reduce or we eliminate this radical sign from the denominator, and this process is known as rationalization. The process of changing this expression into an expression which does not have a term with radical sign in the denominator is called rationalization. So student, what is rationalization? A process in which we change the radical sign from the denominator is known as rationalization. So in rationalization we will take conjugate of the same term which is present on the denominator. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी टर्म मौजूद होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट? वी विल चेंज द साइन. अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम माइनस ले लेंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस ले लेंगे. तो आप यू कैन सी हेयर वी हैव माइनस साइन, तो हमने इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया. ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसके साथ वी विल मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड ऑल्सो वी विल डिवाइड. अच्छा, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 3 एंड 5 माइनस अंडर रूट 3 5 प्लस अंडर रूट 3. यहाँ पर क्या होगा? वी हैव the form a minus b, a plus b. So here we have a is equals to 5 and we have b is equals to under root 3. So this is formula which we have learned in algebra in previous classes. So we will apply here 5 की power square minus under root 3 की power square. Then we will solve it and you can see कि अब डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं है. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन इन विच वी मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड ऑल्सो डिवाइड. राइट नाउ कम टू द एक्सरसाइज एंड टेक द सर्वे ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. इन क्वेश्चन नंबर 1, rationalize the denominators of the following. You have given 3 different questions. Surds are given here and we have to rationalize them. So simple, इनको हम rationalize करेंगे. In question number 2 we have given the value of x and we have to find out the values of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square. बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी गिवन है, बट इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q माइनस 1 अपॉन q. इन प्रीवियस क्वेश्चंस हमें जो है वो सम की टर्म फाइंड करनी थी, यहाँ पर माइनस है. ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में? यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रहे हैं और जबकि ये माइनस हो रहे हैं. अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें कि हमें यहाँ पर x की, p की, q की वैल्यू गिवन है और जबकि हमारे पास 1 अपॉन x की नहीं गिवन. तो बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन you will find the value of 1 upon x
then you will add the value of x and 1 upon x, then you will get the value, required value, right? So come to its solution. Rationalization के लिए क्या करना है? First of all, we will see question number 1. See question number 1. Rationalize the denominators of the following. So we have 1 upon 2 plus root 3. We will multiply its conjugate 2 minus root 3 and also divide. So इसके conjugate को multiply करवाया, divide करवाया. 2 minus root 3 divided by a plus b, a minus b is equals to 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर. सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 2 से 4, यहाँ पर माइनस 3, देन इट इज 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 एंड इट इज 2 माइनस रूट 3. सो दिस इज आंसर. और ये रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गई. डिनोमिनेटर में से आपने रेडिकल साइन को रिमूव आउट कर दिया. सो इन दिस वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर, इट्स पार्ट 2 एंड पार्ट 3. Now see question number 2. We have given x is equals to 4 plus root 3 and we have to find out the values of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square. First of all, students, recall that in these all questions we have given the value of x or 1 upon x. हम क्या करेंगे? हम चाहे x की वैल्यू गिवन हो चाहे 1 upon x की वैल्यू गिवन, in both cases we will rationalize, right? क्या करेंगे हम? x की वैल्यू गिवन होगी, 1 upon x की वैल्यू गिवन होगी, दोनों में से कोई एक गिवन होगी. ओके अगर x की गिवन होगी तो हम रैशनलाइज करेंगे. क्यों करेंगे? 1 upon x के लिए. और अगर 1 upon x गिवन होगा, जैसा कि इन क्वेश्चन नंबर, सी हियर, in question number 7 you have given the value of 1 upon x instead of x. x given नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 1 upon x को रैशनलाइज कर देना है. तो ये क्या होगा? 1 upon x, और जबकि ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 upon 7 plus 4 root 3. सो दीज क्वेश्चंस आर सो सिंपल. इसमें सबसे पहले हम रैशनलाइज करेंगे, जो वैल्यू भी गिवन होगी उसको रैशनलाइज करेंगे, तो आपको उसका इन्वर्स मालूम हो जाएगा. यू नो कि ये इन तमाम x प्लस 1 अपॉन एक्स, p प्लस 1 अपॉन एक्स, q माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या हो रहा है कि अगर x आपके पास एक वैल्यू है तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया गया है, जो कि x की वैल्यू में, उसी वैल्यू में ऐड हो रहा है, राइट? यहाँ पर द डिफरेंस इज दैट कि ये यहाँ पर माइनस हो रही है वैल्यू.